कथानंता कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 सिया राम जय जय राम। कैसा लगा श्रोताओं आपको भजन? श्रोताओं, आज हमारे साथ में रचा जी जल्दी से जुड़ने वाली हैं, एंड रचा जी सुनील जी दोनों लोग। लेकिन जैसे कि हम सनातन की जो धराव का ये एक घंटा है, आज उसमें थोड़ा सा बदलाव है। वो ये है कि चूँकि ईरान और इज़राइल का जो युद्ध है, उससे काफ़ी लोग एक चिंतित हैं कि क्या होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा, कुछ कहते हैं कि नहीं वही होगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो एक हमारे इज़राइली फ्रेंड हैं दर्पण रेडियो के रोज़, उनसे मैंने बात करी थी। उसकी छोटी सी रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे। वो इज़राइल में है, उसमें वो बंकर में छिपी हुई है फाइकें से और बंकर में बंद है। काफ़ी ईरान ने भी अटैक करा है। और दूसरा हमारे साथ में जुड़ेंगे, वो भी हमारे दर्पण की फ्रेंड हैं। उनका नाम है एजिन। वो ईरान की रहने वाले हैं। वो हमारे मेहमान भी थी दर्पण रेडियो में, तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। वो यहाँ ब्रिस्बेन में है, लेकिन उनका परिवार सब कुछ ईरान में है। तो उनसे भी बात करेंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं। शायद इस दर्पण रेडियो की एक रीच होगी कि हम वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं और मीडिया के बजाय उनसे भी जान सकते हैं कि वो कैसे सोच रहे हैं। लेकिन हम वो भी प्रयास करेंगे कि हमारे जो साप्ताहिक राशिफल में है, उनका क्या कहना है इन सब के बारे में। और ऑफकोर्स श्रोताओं, हम वैसे तो पूरी दुनिया से दूर हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अच्छी बात यही है कि हम सबसे दूर हैं, लेकिन एक पक्ष तो लेना पड़ता है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो पक्ष लिया है उसके ऊपर भी हम शायद थोड़ी सी बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो भजन है उसको एक दोबारा से सुनते हैं, तब तक हम फ़ोन कॉल अपने लगाते हैं। Krishna
श्रोताओं हमारे साथ में अंजिम जुड़ गई हैं. अंजिम, Hey, Yatinder, I'm here. Can how you are hear you? me? Good, good. How are you? Good. Sorry to wake you up in the early morning. Nah, all good. No problem. So, Anjim, if we can start, you are from Iran, and everybody is worried, and your family is in Iran at the moment. Yes, everyone from my So, family. how you are feeling? Actually, it's strange feeling. I can't really say that I'm not worried. I am really worried about what's happening in Iran. But we have been observing that the elimination of those terrorists in Iran, which has made us actually really, like, all the Iranian are super happy to see these news coming out and seeing those faces being responsible for murdering so many young Iranian people in their home being murdered. It's actually one of our dream days happening. But obviously, there is a war, and no one likes the war. And this is Khamenei's war. They have That's true. led Iran to this war because they had no negotiation language. They understand nothing but war. He is a They 95-year-old, are warmongers. as everybody knows, 95-year-old, and he's just destroying so many lives. 80% inflation, 60% people are unemployed. That's right. It's very, very That's bad. right. And That's right. the situation of women is very bad. But I'm concerned about the nuclear part. The whole world is concerned about the whole situation because they have, it seems, developed enriched uranium, and they have bombs, and people are worried about. Yes, very close to nuclear bombs. Yeah, because what you can do if somebody want to do at any cost, they will do it. But can I ask you, who in your family are in that area in Iran, and where are they? And if you want to disclose, or are they safe, or what is happening on the ground in Iran? All I can say is that my whole family, actually, my entire family live in Iran. I only have my husband and my sister-in-laws living with me in Brisbane, Australia. But what has happened, nothing impacted to the civilians in Iran that I'm aware of. My family, they all being actually safe. Obviously, they've been hearing the noises. It's not normal days. They are actually extra, stressed about it, obviously, because it's a war. But the same as here, all of them hearing these IRGC commanders being killed by these this way of what's happening, whatever the way is, it's not a big deal for Iranian people. What they want, they want this regime gone. I know 100% of, like, maybe 90% of the Iranian back there, they want this regime gone. 90%? They don't want. Obviously, like, regime is in their weakest situation that they have ever been. Wow. So, Okay. all I can say, it's like, I know that my family are safe, but by now, but and I've been in touch. Yeah, of course, obviously, IRGC again. They shut the internet for the Iranian people. Yes, But I've heard yes. that Elon Musk is doing something about it, so we are happy. So, that's it. But one more thing, Ajin. If you look at the accuracy, what Israel has done, so much accurate precision happened that those people, they wanted to get eliminated. It was so precise that within that building you have one flat, and within that flat you have one room, and that missile, or I don't know what was that, and they killed that person. It cannot be possible without help
of Iranian people within Iran. No, that's right. So that's why I do agree with you somehow that there's a majority of people in Iran, they are actively supporting Israel, in my opinion. Yes, they support Israel. They've been waiting for these days to happen, because within Iran you see what Islamic regime is doing, because they were expecting nothing but war for Iran. They knew, Iranian people, they knew the murderous and this dictatorship is leading Iran nowhere but to the wars. If the war hadn't happened, it's because there wasn't any standing up against what they are doing, like Israel is doing. Israel is defending themselves, defending the whole civilians, actually, around the world against dictatorship and against the terrorism. What we want no terror around the world. We know the root is in Islamic regime, and they must go. Iran and India were very close before, and the Iranian people are so wonderful people, but somehow we got stuck here. But on behalf of our Darpan Radio listeners and all Indian people, we are with you. We are praying for you. And normally in this hour we have our Sanatan values and all those parts, but I was so compelled into talking to you to have a first-hand information from you, from Iran, that what is happening. And always remember, Ajin, that we are always with you. Thank you very much. And I feel that. Thank you so much. I've been actually lucky to have met a lot of good people in here, my Jewish, my Israeli friends, my Australian friends who are supporting us, and we are not lonely. And you, of course, we met you in Sydney, and it was a great event that day that we came and we saw your community. So yes, I hope that everything goes in the way that we all are wishing at the moment. So, and thanks again, and wishing you all the best for yourself, thank you so much, for your family and the people of Iran. There will be less possible damage and human life lost in Iran. This is praying from us as an Indian, as Australian, and as a Sanatani. We do not believe into this murderless killing, but we have to live in this world. So again, Ajin, thank you very much for giving us time. Yatinda, sorry, did you want to talk to Hassam as well? Because he is here as well. Oh, he's here? Oh, Hassan, if I can have a quick chat with him. Sure. Thank you. Thank you. Yes. Good morning, Yatinda. Good morning, my friend. How are you? I'm good, and namaste to all my Hindu friends in Australia. Thank you. We are listening to you, and we are very much with you. I just wanted to ensure you on behalf of all our listener that we are with you. Okay, we do not want much harm for you guys. Yeah. This is not our war. This is not Iranian or Iran's war. This is Ayatollah Khamenei, the supreme leader and the terrorist ideology of Islamic regime's war. They wanted that. They were trying to make a nuclear bomb to destroy Israel and USA, and then, keep fighting with everyone in the world to turn them to be part of the Islamic Caliphate or whatever. If they could destroy Israel in imaginary world, honestly, next target, I don't know, maybe it was India or, because they are not normal, government. They are not nation state. They just ideological, the government, and they want to force everyone to be part of the Islamic. Can I ask you, Hassan, one thing? They were talking about the whole called Middle East or Western Asia, that they all will be involved in this war and it will be World War III. But it didn't happen that way.
Because it was propaganda. Yatinder. They want. Yeah. We call it unholy alliance of the red and black, which is Marxist and Islamist. Islamic regime was like a paper tiger. Oh, World War III is happening. Blah blah blah. But in just a few hours, IDF and IAF, the Israeli Air Force, they smash whole the IRGC commanders, But my point is, Hassan, my point is this. I don't know if you can make a comment on that. No country in that region supported Iran. Because all Arab country, even Arab country around the Persian Gulf, even they hate Islamic regime because Islamic regime support Hamas to attack Israel to kill innocent people. Israel support Hezbollah, and it doesn't make sense. Even Arab country, which is Islam, was born in Saudi Arabia. They want to be normal country. Look at Dubai. Look at Qatar. Look at Saudi. They are all rich country, but my Iranian people in Iran, they are suffering from the poverty because all the money from the oil and gas. You think the Iranian people will get up this time and then they will do something which can reverse somehow this so-called revolution with another revolution? Yeah, actually, Islamic regime is getting, the smash from the Israel, but now does just threaten Iranian. There are lots of intelligence, the people all in the city, they want to control Iranian, doesn't come to street, but it's just happening because Iranian, to be honest, they are living in a dream now. They cannot believe that all the IRGC commander is gone, and now they are just trying to wake up and they are shocked now, but they are just trying to wake up and just, face to the reality. This is the only time we've got in our lifetime to go out and smash the Islamic regime out. And I promise that it will happen. It's just maybe a matter of time, little bit, but it will happen. This is the only chance we've got, and we are going to get rid of the Islamic regime and bring the peace, happiness, prosperity for all, not just for Iranian, for Middle East. And to be honest, Iranians stand with Israeli people as Israeli people stand with Iranian people. We got a common, enemy. We are fighting against terrorism. And we can just be, the winner of this war together. Hassan, if I may say though, that all our listeners, all Indian people are with all Iranian people. Okay, we may not be with the regime of current regime of Iran, but we are with you. Okay, and the second part I want to say though, hopefully your suffering will finish this time. Hopefully your suffering will finish. You guys were suffering. You are so beautiful, so hardworking, so smart people, but somehow this thing happened to you, and that's why we have to be awakening. We have to be very careful that these so-called hardliner should not take over our life. We should be very careful. This is a learning for the whole world to avoid these people who are just mad. Yep. They want to war. 100%. You're right, man. Thank you very much, Hassan and Najim, both of you. You were so wonderful, and looking forward to see you again sometime in the studio. Thank you very much. Thank you so much. Hope to see you soon. We talk about the victory of this war for Iranian. And I'm going to have a chat with Rose as well very shortly. Yes. Thank you, Tinder. Have a great day. Okay, bye-bye. Bye. वचन दीजिए ना छोड़ोगे कभी हमारा हाथ जी ओ भोलेनाथ जी ओ शंभुनाथ जी ओ भोलेनाथ जी ओ शंकरनाथ जी ओ भोलेनाथ जी। संजीव जी, हाँ जी, कैसे संजीव जी? बढ़िया, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सवेरे सवेरे आपको उठाया है। तैयार बैठा था। आज थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज हुआ है क्योंकि
पूरी दुनिया में एक इस समय हो रहा है कि जो ईरान और इज़राइल का जो युद्ध है, क्योंकि पूरा मैंने सुना है कि जो तेल अवीव है उसके ऊपर बहुत मिसाइल दागे गए हैं। एंड तो हमारे जो दर्पण रेडियो के दोस्त हैं जो जो इंडियन नहीं है, आप ऐसे कह सकते हो, बट दे आर लाइक सनातनी, उनकी जो वैल्यू है। तो ईरान के लोगों के साथ में मेरा कनेक्शन बना है और मैंने देखा कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं, भले वो उसको बिलीव नहीं करते हमारे धर्म को ऐसे, लेकिन उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो उसी किस्म के हैं जो सनातन वैल्यू हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उनको सनातन के इस सेगमेंट में लेके आए। तो उनसे मैं बात कर रहा था, जिसकी वजह से आपसे पहले बात नहीं हो पाई। तो संजीव जी, एक शुरुआत इसी से कर लेते हैं कि आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है, ये वर्ल्ड वॉर होगा या जल्दी खत्म हो जाएगा? आप कुछ कह सकते हैं उसमें? तो अभी देखो करंट पोजीशन के हिसाब से जो है वो डिस्क्राइब कर सकता हूँ जी, क्योंकि डिटेल में कैलकुलेटिव तो किया नहीं मैंने इसके बारे में। जी जी, पर करंट जो प्लेनेटरी पोजीशन है तो वो हिसाब से जो कुछ चल रहा है जी उस पर थोड़ा मैं प्रकाश डाल सकता हूँ। जी, बताइए। ठीक है, एक सेकेंड। तो करंट में क्या है कि अभी सब प्लेनेट जो है मंगल केतु की युति भी चल रही है, जी ठीक है, और चतुर्थ भाव का स्वामी भी चंद्र है, वो भी पड़ा है। मेजरली शनि जो है वो भी 12वें स्थान में पड़ा है। तो मंगल जो है वो सेनापति है। मंगल के तो ये युद्ध का जो ये प्रमाण बन रहा है वो मंगल केतु के हिसाब से ज्यादा इफेक्ट करता है। ओह अच्छा। हाँ, तो जमीनी, जैसे मैंने अभी वही सर्च करा था अपना जो आगे का सब कल का प्रोग्राम था गए हफ्ते का, जी वो भी मैंने सुना, अभी आगे का भी मैंने सुना, नंदिनी जी वाला भी सुना था। जी तो ये जो भाई ने बताया था कि मंगल जो है वो भूमि का कारक है। जी, तो ये जो होनारत होना, अर्थक्वेक होना, ये अभी भारत में भी देखिए अपना एक्सीडेंट हुआ है जी बहुत बड़ा। हाँ, ये भी बहुत बड़ा, प्लेन क्रैश का भी जो हुआ है। जी तो ये सब होनारत यानी अकस्मात एक्सीडेंटल सब चीज होना और ये वॉर होना, ये मंगल के कारक है। मंगल केतु का जो युति हुआ है ओह उसके कारक है। ओके यानी कारक यानी वही जिम्मेदारी है कि ओके। ये सब चीज घटती रहती है। तो ये कब तक नकारात्मक- चलेगा, ये मंगल का जो मंगल कब तक सेनापति रहेंगे? मंगल जनरली 2 महीना एक स्थान में बैठता है। अच्छा यानी एक अभी युति होती 2 महीने में वो ट्रांजिट कर जाता है जी मंगल। जी। तो ये प्रभाव उतना तो रहेगा ही रहेगा। 2 महीना तो ये हुआ, 2 जुलाई महीने का, अगस्त अगस्त तक, तब अगस्त तक कुछ सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। जी अभी नहीं लेना, अभी ईरान भी कूदा है। जी पहले इजराइल पैलेस्टाइन चल रहा था, हमास चल रहा था, अभी उसमें ईरान का भी पार्ट आ गया है। जी तो ये सब चीजें चलेंगे। एक एक को इन्वॉल्वमेंट कर रही है सब। जी जी एक एक देश देखिए इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, जहाँ कम होना जाए वहाँ एक एक बढ़ रहे हैं। जी जी। तो ये तो जो ये जो हमारा मतलब एक जेनेरिक राशिफल ऐसे हो सकता है हर एक के लिए कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया, जो हमारे ऑस्ट्रेलिया के लिसनर ज़्यादा होते हैं, वैसे तो हमारे लिसनर अमेरिका में भी हैं, भारत में भी हैं, लेकिन आप जहाँ पे हैं वहीं पर रहिए, ज़्यादा ट्रैवल वगैरह नहीं करिए और ये 2-4 महीने काटिए और फिर बाद में देखिए जब सब शांति हो जाती है तो ये आपके ब्याह पे मैंने राशिफल ही कर दिया। तो बताइए संजीव जी, हमारे जो 12 राशियों का राशिफल क्या है हमारे श्रोताओं के लिए? हाँ जी, तो मैं शुरुआत करता हूँ जी। दर्पण रेडियो के सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज सिडनी ऑस्ट्रेलिया सुबह 8 बजे के समय अनुसार आज का पंचांग है 15 जून 2025 रविवार, विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष चतुर्थी, नक्षत्र है श्रवण, योग है इंद्र, करण है ब व। आज जन्म लेने वाले जातकों की राशि है मकर, जिसके अक्षर है
ख और ज। जी आज जन्म लेने वाले जातकों का नाम ख और ज अक्षरों पर रखना चाहिए। अभी मैं बताता हूं मेष राशि का इस सप्ताह का भविष्य फल। पहली राशि है मेष, अराइज, उसके अक्षर है अ, ल और ई। इस सप्ताह आपको मिश्रित फलदायी है। व्यापार और कारोबार के विषय में लाभ होगा। पुराने निवेश, पैतृक संपत्ति, जमीन, मकान की वजह से आपको लाभ मिलना है और धन की प्राप्ति होगी। आपको सकारात्मकता के साथ प्रयास करना होगा और संयमता से और समानता से आचरण करना होगा। तब जाकर आपको व्यापार क्षेत्र में सफलताएं मिलेगी। परिवार और रिश्तों के विषय में आपको सावधानी बरतनी होगी। आपके आचरण से और विचारों से किसी का मन ना दुखे, उसका ख्याल रखना होगा। परिचित और स्वजनों से अनबन हो सकती है। जीवन साथी से भी विवाद हो सकता है। यह समय आपको शांति से गुजारना अत्यंत आवश्यक है। इस सप्ताह स्वास्थ्य में भी आपको परेशानियां आ सकती है। शारीरिक पीड़ा, अशक्ति, आपको शारीरिक विशेष ध्यान रखना, वरना आपको रोगग्रस्त और बीमारियों का शिकार हो सकती हो। जी आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है और उसके अनुरूप आपको मुसीबतें आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग को भी मेहनत, एकाग्रता रखनी चाहिए और पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि, टॉरस, जिसके अक्षर है ब, व और उ। यह सप्ताह आपके लिए कष्टदायक रहेगा। व्यापार, कारोबार और नौकरी के विषय में आपको सावधानी बरतनी होगी। अपने सहकर्मी और अधिकारियों के साथ सहयोग और मदद से काम ले, तभी आप अपना लक्ष्य भेज सकते हैं और सफलता मिल सकती है। ऐसे व्यवहार से आपको प्रशंसा और बढ़ोतरी मिल सकती है। आपको यात्रा सफर भी करना पड़ सकता है, परंतु यह यात्रा प्रवास आपके लिए लाभदायी रहेगा। जी पारिवारिक चिंता और परेशानियां बनी रहेगी, जिससे तनाव और खिंचाव का वातावरण रहेगा। जीवन साथी से भी सामान्य सुख रहेगा। सभी परिवारजनों और रिश्तेदारों से संयमता से बरतने, वरना संबंधों में विक्षेप, मुसीबतें आ सकती है, मन मुटाव हो सकता है। स्वास्थ्य के विषय में भी आपको पूरा ख्याल रखना होगा। तामसिक खुराक का सेवन ना करें और सात्विक खुराक ले। आपको बीमारियों का मूल कारण प्राप्त होगा और उसके इलाज में सफलता मिल सकती है। यह सप्ताह आपको मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। विद्यार्थी छात्रों को भी पढ़ाई में विशेष एकाग्रता और ध्यान रखना जरूरी है, वरना असफलता का सामना करना पड़ सकता है। अभी तीसरी राशि मिथुन, जेमिनी, अक्षर है क, छ और घ। जी यह सप्ताह आपके लिए उत्तम शुभ फल देने वाला रहेगा। व्यापार, व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सामान्य स्थिति बनी रहेगी। कोई बड़ा निवेश का प्रयोजन कर रहे हैं तो सबसे विचार विमर्श करें, आगे बढ़े। जी अपना व्यापार शांति से जैसे करते हैं वैसे ही करते रहे। नौकरी पेशा लोगों को भी अपने रोजमर्रा का जीवन बिताना होगा और शांति से समय प्रसार करना होगा। पारिवारिक तथा जीवन साथी का विशेष सहकार और समर्थन मिलेगा। काफी खुशी भरा वातावरण रहेगा। सबके साथ
अच्छा समय बीतेगा और एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। संतान के विषय में सुखाकारी शुभ समाचार मिल सकते हैं। उनकी सफलता के कारण आप में विशेष ऊर्जा और खुशनुमा वातावरण रहेगा और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों को भी यह काफी अनुकूल समय रहेगा पढ़ाई के लिए। कर्क राशि चौथी राशि है, कैंसर, जिसके अक्षर है ड और ह। जी यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी होगा। जैसे व्यापार कारोबार क्षेत्र में सफलता रहेगी, तो स्वास्थ्य के बारे में कष्ट पीड़ा रहेगी। इस सप्ताह आप व्यापार कारोबार में वृद्धि कर सकते हैं, उसका फैलाव कर सकते हैं। मकान जमीन के विषय में व्यवहार करना आपके लिए लाभ देने वाला रहेगा। नौकरी करने वाले जातक भी अपनी उन्नति कर सकते हैं और उच्च पद को पा सकते हैं। इस सप्ताह स्वास्थ्य के विषय में काफी पीड़ा देने वाला रहेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप स्वास्थ्य शरीर के संबंध में सतर्कता बरतें। सतर्क रह के आप उन चीजों से बच सकते हैं। पारिवारिक सुख मिलेगा, अपने रिश्तों में आपको संतुष्टि का एहसास होगा, सबका समर्थन और प्रेम मिलेगा। संतान के विषय में आपको अच्छे शुभ समाचार मिलेंगे। उनके उच्च शिक्षा की बाबत सफलता के समाचार आ सकते हैं। विद्यार्थियों को भी यह सप्ताह सानुकूल रहेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप उच्च शिक्षा के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है और आप अपना लक्ष्य सिद्ध कर सकते हैं। अब हम पांचवी राशि के बारे में बात करेंगे। सिंह राशि, लियो, जिसके अक्षर है म और ट। यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही सुखद और शुभ होगा। व्यापार कारोबार में विकास होगा, धन लाभ भी होगा। आप नए नए आयाम बना सकते हैं और अच्छे निवेश के अवसर मिल सकते हैं। आप में एक विशिष्ट ऊर्जा का संचार होगा और आप सफलता के पायदान चढ़ सकते हैं। जीवन साथी का भी विशेष समर्थन और साथ मिलेगा। परिवार का भी सुख अच्छा रहेगा। सबका प्रेम और समर्थन मिलेगा। स्वास्थ्य के विषय में भी यह सप्ताह अच्छा बढ़िया गुजरेगा। जीवन साथी अपने विशिष्ट चरम पर आपको समर्थन देंगे। विद्यार्थी वर्ग में भी यह सप्ताह काफी अच्छा रहेगा। उनके प्रयास और मेहनत का सफल परिणाम आ सकता है। जी अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। वर्गो कहते हैं जिसे अंग्रेजी में। उसके अक्षर है प, ठ और अण। यह सप्ताह आपके लिए सामान्य संतुलित रहने वाला है। व्यापार कारोबार में खर्च अधिक रहेगा। आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे। उनसे निपटने के लिए समय और धन दोनों की हानि होगी। सप्ताह के अंत में आमदनी अच्छी रहेगी। व्यापार कारोबार और नौकरी के विषय में यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहेगा। यह सप्ताह आपको शांति से गुजारना होगा। पारिवारिक मतभेद हो सकते हैं, पर बातचीत और विचार विमर्श करके उसका समाधान पा सकते हो आप। परिवार के सभी सदस्यों की भावना का सम्मान करें। जीवन साथी से साथ और सहयोग प्रेम मिलेगा। सबके सहयोग से पारिवारिक परेशानियों से मुक्त हो सकते हो और परिवार का सुख पा सकते हो।
स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना है। जी सिर के संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। मौसमी बदलाव और मौसमी रोगों से बचना होगा। परहेज और खुराक में संयमता रखेंगे तो आप शांति से यह सप्ताह गुजार सकते हैं। यह सप्ताह आपको समझदारी और संयमता से गुजारना होगा। जी अभी हम बात करेंगे सप्तम राशि तुला, लिब्रा और उसके अक्षर है र और त। यह सप्ताह तुला राशि के जातक के लिए शुभ फलदायक रहेगा। आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। जी जी आप अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। व्यापार कारोबार में भरपूर लाभ मिलेगा और आपके प्रयास का उत्तम फल मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति मिल सकती है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा और सहकर्मियों का समर्थन साथ मिलेगा। यह सप्ताह शुभ फलदायी है, परंतु आपको साहसी या जोखिमी निवेश से बचना होगा, जी वरना उसमें हानि हो सकती है। परिवार और मित्रों रिश्तेदारों के साथ अच्छा समय पसार होगा। सबसे प्रेम सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से सुख प्रेम मिलेगा। सबके साथ आनंदपूर्ण खुशनुमा समय बीतेगा। जी विद्यार्थी भी यह सप्ताह अच्छे तरह से पास करेंगे। परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। आपकी भविष्य की योजना का प्रायोजन कर सकते हैं और उसमें आप सफल हो सकते हैं। जी अभी 8वीं राशि है वृश्चिक, जिसे कैंसर कहते हैं। उसके अक्षर है न और य। यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी होगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी, पर साथ साथ खर्च भी काफी रहेगा। आप बेचैन रहेंगे और हताशा लगी रहेगी। कारोबार व्यापार में कोई भी साहसी फैसला ना करें, आपको हानि होने की पूरी संभावना है। आपके साथ धोखा होने की और आपको संचित धन की हानि होने की पूरी संभावना बनती है। व्यापार कारोबार में समझदारी से फैसले करें। स्वास्थ्य के विषय में सब सामान्य रहेगा। कोई बीमारी या रोगों की पीड़ा नहीं रहेगी, परंतु आपको वाहन से सावधान रहना होगा। चोट लगने की संभावना बनी रहेगी। परिवार और वैवाहिक जीवन का सुख भी सामान्य रहेगा। परिवार के सभ्यों से बेवजह के विवाद में ना पड़े। जी सबकी बात सुननी होगी और शांति से विनम्रता से आचरण करके समस्याओं का निवारण करना होगा। विद्यार्थी को भी विशेष मेहनत और प्रयास करने होंगे, तब जाकर उनको सफलता मिलेगी। जी जी अब हम बात करेंगे धनु राशि की। सजिटेरियस, जिसके अक्षर है ब, ध, फ और ढ। यह सप्ताह आपके लिए मुसीबत और परेशानियों भरा होने वाला है। व्यापार कारोबार में संतुलन बनाए, वरना उसमें दिक्कतें आती है। मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। आपके प्रयास और मेहनत निष्फल होती है। कार्य क्षेत्र में आपको अधिक विशेष मेहनत करनी पड़ सकती है, तब जाकर आप संतुलन बना रखने में सफलता हो सकते हैं। यह सप्ताह में आपको पारिवारिक मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के सभ्यों की नाराजगी रहेगी और मनमुटाव हो सकता है। आपके जीवन साथी के साथ सलाह से आप लाभ ले सकते हैं और अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह सप्ताह मानसिक रूप से थका देने वाला रहेगा।
उनको विशेष मेहनत और परिश्रम करना होगा। पढ़ाई में एकाग्रता लानी होगी। यह सप्ताह शांति और समझ से बिताना आपके लिए हितावह रहेगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। कैप्रिकॉर्न कहते हैं जिसे अंग्रेजी में, और उसके अक्षर है ख और ज। यह सप्ताह आपके लिए अति शुभ है। व्यापार कारोबार में आपको काफी सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलेगा। हालांकि आपको खर्च अधिक करना पड़ेगा, मगर जो खर्च करोगे उससे ज्यादा धन लाभ करोगे और आप खर्चों को संतुलित कर सकोगे। सफलता और व्यापार का विकास होने के शुभ योग बन रहे हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार परिणाम पा सकते हैं और व्यापार में उन्नति कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बाबत आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। आप सोच समझकर आचरण करेंगे तो आप स्वस्थ रहकर यह सप्ताह गुजार सकते हैं। मानसिक तनाव नहीं उठाना है और जैसे चल रहा है ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। परिवार का साथ समर्थन मिलेगा। सबके सहयोग से प्रेम मिलेगा। बच्चों का भी विशेष सहकार मिलेगा। जीवन साथी भी आपको वश रहेंगे और प्रेम खुशी से यह सप्ताह आपका निर्वाह होगा। यह सप्ताह आपके लिए संतुलित और खुशनुमा रहेगा। अभी हम बात करेंगे 11वीं राशि कुंभ राशि, जिसे एक्वेरियस कहते हैं। उसके अक्षर है ग, श, त, स। यह सप्ताह आपके लिए नए विचार और आत्मनिर्भरता का समय होगा। सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ेगी। अपनी जान पहचान का आप पूरा लाभ पा सकते हैं। व्यापार और कारोबार के लिए उचित समय रहेगा। नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और सही व्यवहार और संयमता से आपकी तरक्की रहेगी। परिवार का अच्छा सुख मिलेगा। एक दूसरे की भावनाएं समझने में आएगी। सबसे प्रेम और समर्थन मिलेगा। जीवन साथी के साथ खुशनुमा वातावरण रहेगा। एक दूसरे के प्रति लगाव और प्रेम रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। सिर दर्द और आंखों का दर्द हो सकता है। योग और ध्यान करें तो आप मानसिक थकान पर विजयी होंगे। यह सप्ताह आपके लिए शुभ और प्रगति करने वाला हो रहेगा। अभी आखिरी राशि मीन, पाइसिस, पीसियस। उसके अक्षर है 10, द, च, ज और थ। यह सप्ताह आपके लिए शुभ और लाभ करने वाला रहेगा। व्यापार, कारोबार, व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे। उसमें आपको सफलता मिलेगी। अपने सहकर्मी का सहयोग समर्थन मिलेगा। व्यापार में कोई बड़ा कदम उठाने से पहले विचार विमर्श अत्यंत जरूरी करें। बड़े निवेशों से बचे, वह आपके लिए हितावह रहेगा। परिवार में प्रेम और सहयोग मिलेगा। बुजुर्गों से लाभ होगा। परिवार में शुभ मांगलिक प्रसंग का आयोजन भी हो सकता है। जीवन साथी से भी मधुरता और प्यार से व्यवहार करें और आपको जीवन खुशहाल रहेगा।
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, शारीरिक दर्द रहेगा, मधुप्रमेह, डायबिटिक जातकों को और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की बीमार से पीड़ित जातकों अपना विशेष ख्याल रखें, सात्विक खुराक का सेवन करें, व्यायाम और चलना रखें, जिससे आपको लाभ रहेगा और आप स्वास्थ्य के बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। तो जी। ये हो गया 12 राशियों का जी। साप्ताहिक राशिफल। जी संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सवेरे वहाँ पे उठाया और ये आपने हमारे लिए बहुत श्रोताओं के लिए दिया है। तो संजीव जी, आपसे फिर से मुलाकात होगी, लेकिन मैं इस तरीके से फिर कहना चाहता हूँ श्रोताओं की, जो ये राशिफल होता है उसका उद्देश्य ये है कि एक सकारात्मक बात आती है, थोड़ी सी आपको एक वो मिलता है, संबल मिलता है, जिसको कहते हैं कि चलो ऐसा आज हमारा सप्ताह होने वाला है, बरसात होने वाली है, छतरी लेके जाते हैं। ये इसका प्रयास है। कोई मानता है तो ठीक, नहीं मानता है तो ठीक, इट डजंट मैटर, लेकिन छतरी लेके गए, मान लो बरसात नहीं भी हुई तो क्या फ़र्क पड़ गया, मैं ऐसे देखता हूँ। तो मेरे पास भी 2-3 श्रोताओं का डायरेक्ट आया था, मैंने नंबर दिया था उस पर। मैं वही कहना चाह रहा था कि अगर आप दोबारा से अपना नंबर दे दो। हाँ जी, अगर किसी भी श्रोता को कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना डिटेल भेज सकते हैं। आइडेंटिटी देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस भेजना है केवल। जी, ठीक है, तो अभी मेरा नंबर है, अपना नंबर आप बोल दीजिएगा। हाँ जी, +91 99 205 37584। मैं रिपीट कर देता हूं, +91 99 205 37584। और मैं धन्यवाद करता हूँ यतेंद्र जी का, और अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक सबको तो आपका सप्ताह और आपका जीवन सुखमय रहे, ऐसी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये आपने सुना है हमारा साप्ताहिक राशिफल। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी हम आपकी इजराइल से जो हमारी रिपोर्टिंग है उसके बारे में currently based right in the middle of it all. It's funny, just a few months ago in Australia, I was thinking about how the war only lives inside of my mind, inside of our minds. And the trauma is just internal. And outside, life goes on. You have to have small talk. You have to, behave normally at work. And of course, whether it's Pahalgam or Iran, the people of Iran, or what's happening in Israel, it's in your mind all the time, but you have to act normal. But here in Israel, being here, it's incredible. It's actually all around me. There's graffiti on the walls, there's yellow ribbons on cars, there's posters of hostages on every bus stop. And it actually feels less scary and less alone than it does in Australia. Because श्रोताओं, राज तेल अवीव इजराइल में है। Really strong sense of unity. I'm actually speaking to you now from a community bomb shelter. There's about 5 families here who are going to sleep here because last night was a barrage of hundreds of missiles and drones from Iran, and tonight we're expecting more. This is because we have taken on the noble cause of trying to end terror and trying to bring down the Iranian Islamic regime, trying to help the Iranian people become a truly free people and bring democracy to that once great nation. I finally got the kids to sleep, and if I wasn't in the community bomb shelter, if I was in my home, I would have, if there was a siren, exactly 90 seconds to get to the shelter. So imagine 90 seconds to pick up a sleeping child, walk out the door, walk down the stairs, across the street into a bomb shelter.
It's barely enough. So we've decided to just stay in the community bomb shelter all night. And the thing is that there's something really powerful happening here. There's a really strong sense of unity. There's almost no fear. There's a shared purpose, because it really isn't just about defense. This is about ending global terror at the root. And the root is the Iranian Islamic regime and the IRGC. It's acting as the head of the octopus for far too long, funding terror proxies like Hamas and Hezbollah. This is Khamenei's war. And it's a noble fight to free the Iranian people from this regime. You all in the Hindu community, you know terror. You saw it in Pahalgam. You've seen it for centuries. And that's why we feel so deeply that you're our allies, because you are watching what's happening with us and you know our pain. You know what we are experiencing. Iran was actually once a center of Jewish life. It was actually King Cyrus, the Persian king, who allowed us to return to our land for the first time. So after exile. And even now, it is Iranians and Persians who support us. And they want a change. They are so hopeful and so excited that perhaps they will be able to bring the uprising that Iran so desperately needs. When I tell my family and friends, the Israelis here, about the support that we're getting in Australia from you all, from Hindu Council of Australia, from Hindu Association, and from our Iranian partners, they really are so surprised and so amazed, and your solidarity reminds them that they're not alone, and that's so important. And in Australia too, many of us do feel alone. Our government still aligns with Iran's regime. We still host an Iranian ambassador. We still host fake Iranian elections, which are not real elections, and they happen onshore in Australia. And it props up propaganda through the ABC, totally skewed news, which the Hindu community knows well about skewed news as well, and ignores terror. And so your voice and your support really matters. It's giving hope to everybody here. So let's stay strong, let's stay united. Jai Hind, Am Yisrael Chai, and let's hope for the best, and we'll all try to stay safe. If any one of you listening wants to reach out or contact us, contact me, and tell us how you feel or ask any questions, please feel free to go to minority-impact.com and just fill out the contact form. We'd love to hear from you. Thank you so much. Thank you, Roj. I really appreciated. ये रोज एक माँ है एंड बहुत टोडलर है एक्चुअली उनका बच्चा, और वो बंकर में है तेल अवीव में, और एक फैमिली से मिलने गई थी और अभी वो वहाँ पे सी गॉट स्टक. श्रोताओ, मैं तो सोचता हूँ हम कितने भाग्यशाली हैं कि दुनिया से बहुत दूर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हैं, जहाँ पे हमारा किसी से कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम उनके लिए कम से कम प्रे कर सकते हैं. आप इस बारे में क्या सोचते हैं? श्रोताओ, एक और बात है, हमारी ऋचा जी भी आ गई हैं स्टूडियो में. तो ऋचा जी, आप क्या सोचती हैं? ये जो आप भी उतने कंसर्न में हैं, क्या है आपको क्या लग रहा है? सुप्रभात दर्पण के सभी श्रोताओं को, और यतिंदर जी आपको भी. ये इतनी दुखद बातें हो रही हैं सब जगह, चाहे आप विमान दुर्घटना की बात कर लें या इजराइल ईरान की बात कर लें, सभी लोग इससे अफेक्टेड हैं. तो ये बहुत दुख की बात है, और ये आपने बहुत ही अच्छा किया कि इस विषय पे बात की, ताकि उनका पक्ष भी हम जान सकें. जी, वो वहाँ पे हैं, मतलब मैं इसको ये बोलूँगा कि वो वहाँ पे जो आदमी बातें करना तो आसान होता है. जी जी जी. लेकिन I mean what they are going through. कितना उनके जो आप समझो बंकर में, जो जब मैंने उनसे बात करी तो वो बंकर में थी, वो बच्चा उनका, उन्होंने फोटो भी मुझे वो थोड़ा सा वीडियो करके भेजा कि क्या सिचुएशन में रह रहे हैं. नहीं, बहुत ही दुखद. हाँ, और देखिए, ईश्वर करे कि जल्दी से जल्दी ये सॉर्ट आउट हो और जो है लोग शांतिपूर्वक अपने घर लौटें या घर में रहें. शांति बड़ी बात कह दी, शांति बड़ी, कैसे शांति आएगी समझ में नहीं आ रहा. नहीं, बहुत, क्योंकि अगर ये एस्केलेट हो जाता है, लेकिन लकीली ये सबसे खुशी की बात इसमें है कि एस्केलेट नहीं हुआ, और कंट्रीज में इन्वॉल्व नहीं हुआ जी. ये बहुत बड़ी बात हो गई. क्योंकि आप देखिए ना, जो एरोप्लेन उड़ के गए हैं जी, उनको इराक ने, सऊदी अरेबिया ने और एक और 2 कंट्री, उन्होंने इनको फ्यूलिंग करी है, क्योंकि 2000 किलोमीटर आना जाना पॉसिबल नहीं होता है.
तो फीलिंग हुई है। तो ये भी नहीं कि और जो कंट्री हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस समय तो ये लग रहा है कि ईरान अकेला है। अगर ये है तो ये जो वहाँ की खुमैनी की जो गवर्नमेंट है वो जल्दी गिर जानी चाहिए, ये ऐसा लग रहा है जी। अगर ऐसा हो गया तो शांति होगी। नहीं, धन्यवाद आपका कि आपने इस टॉपिक पे बात की जी। और एक और है सुताओ ऋचा जी पहली लेके आई हैं जी, तो ध्यान से सुनिए रेडियो को। और फिल्म सितारे जमी पर उसके ऊपर है। तो जीतने वाले को आप क्या देने वाली हैं ऋचा जी? टिकट देंगे और क्या, इससे बेहतर इनाम क्या हो सकता है। जी जी, आप टिकट देंगे तो श्रोताओं ध्यान से सुनिएगा। और क्या क्या लेके आई हैं हमारे श्रोताओं? बहुत सारी आज बातें हैं हमारे पास करने के लिए, बिल्कुल फुल पैक प्रोग्राम है। और आपको बता दें यतिंदर जी, हमारे पास एक कवि हैं श्री विनयशील जी चतुर्वेदी जी, वो आज हमसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा एक जीपी हैं डॉक्टर नीता जैन, उनसे हम बातचीत करेंगे। एक नाटक हो रहा है स्मोक एंड मिरर्स, उनके डायरेक्टर और राइटर सुश्री रेखा राजवंशी और श्री विपुल व्यास जी, उनसे बातचीत करेंगे। अरे वाह। और सुरैया जी का आज जन्मदिन है तो उनके गाने भी सुनेंगे, और समय रहा तो थोड़ी बातें भी करेंगे। तो बहुत ही बिजी और व्यस्त प्रोग्राम है। अब हम दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो श्रोताओं आप प्रोग्राम पे जो है ना एंजॉय करिए, चाय कॉफ़ी जो भी लाना है लाइए, पकौड़े। चलिए। Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM।